अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटी। आप सबको खुशामदीद। हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की अहम ताज़ा तरीन और मुस्तैद खबरें, खुसूसी रिपोर्ट्स, अवामी मसाइल और अक़लियती बरादरी समेत मुआशरे के हर तबके की आवाज़। आइए अब बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नीट पेपर लीक मामले पर अहम बयान। मेहनत और सख्त कानून और फास्ट ट्रैक अदालतों का अंदिया। नीट पेपर लीक मामले पर सोनम वांगचुक ने 26 रोजा भूख हड़ताल किया खत्म। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सख्त कानून लाने की कराई यकीन दहानी। बीजेपी एहतजाज में पुलिस का कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट में सख्त एतराज। गोपाल शंकर नारायणन ने पुलिस के इख्तियारात पर उठाए सवाल। करनूल में रात के औकात में विजिबल पुलिसिंग जारी। स्टॉप फेस वॉश एंड गो मुहिम के जरिए सड़कों की हिफाजत पर आगाही। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट का कर दिया आगाज। जमीन के रिकॉर्ड को मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद से एक अहम खबर। टेक महिंद्रा के साबिक मुलाजिमा भावना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीमार बच्चे की देखभाल के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगने पर कंपनी ने उन्हें बिलाजवाब मुलाजिमत से निकाल दिया है। इस फैसले के खिलाफ भावना ने कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। मौके पर मौजूद पुलिस मुजाहिरा पुरअमन रखने और खातून को समझाने की कोशिश कर रही, ताहम टेक महिंद्रा की जानिब से इस मामले पर अभी तक कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया। లేబర్ లాలో కోర్టులో వేసుకుంటాం మమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేస్తామని ఎంక్వైరీ చేసే వరకు నిన్న మీరు ఈవినింగే కదా ఈవినింగ్ అయింది కదా మేము ఈరోజు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి మీ హెచ్ఆర్ని పిలిపించేసరికి మీరు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారు. అయ్యో నిన్న నేను మీకు చాలాసేపు హెల్ప్ చేయమని అడిగాను. లేబర్ కోర్టులో కన్సల్ట్ చేయాలని సిఐ గారు లేబర్ కోర్టు నంబర్ వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏ కానీ మీరు అసలు రాంగ్ సరే మేము మాట్లాడతాం రాస్తున్నాం మేము లోపలికి అది ఆల్రెడీ ఇందాక రవి గారితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తే వాళ్ళు చెప్పారు నా లీగల్ టీమ్ మీతో మాట్లాడతారు, మీరైతే మీ ఎంక్వైరీ మీరు చేసుకోండి। तेलंगाना में TGLDA के चेयरमैन डॉक्टर चरण कौशिक यादव ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए कहा कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा। डॉक्टर चरण कौशिक ने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और वजीर दाखिला अमित शाह फौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफा दें, ताहम इस मामले पर मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आना बाकी। భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ నీట్ పేపర్ అంశం విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంతసేపు రాజకీయం చేస్తే తప్ప ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ని రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి దేశంలో ఉన్నటువంటి నీట్ రాసినటువంటి 7.5 కోట్ల మంది యువత కోరుతా ఉన్నారు। 23 రోజుల సంది ఈ సంఘటన జరుగుతా ఉంది। అయినా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు శీతాకాల సమావేశంలో పార్లమెంట్ లో బిల్లులు ఎట్లా పాస్ చేసుకోవాలి, డీలిమిటేషన్ కావచ్చు, మహిళా బిల్ కావచ్చు, లేకపోతే జమిలీ ఎలక్షన్ కావచ్చు, అధ్యక్షతర ఎలక్షన్ కావచ్చు, రకరకాల బిల్లుల మీద ఉన్నటువంటి మోజు విద్యార్థుల నీటు అంశానికి సంబంధించడంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైంది। 23 రోజుల దీక్ష చేస్తున్నటువంటి ఎవరైతే నీట్ నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా పార్లమెంటు మీద కావచ్చు, జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో 100 మంది విద్యార్థులు గాయాల పాలై అరెస్ట్ అయిన పరిస్థితి మనం చూస్తాం। అయినా కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారితో రాజీనామా చేయలేదు। ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి లార్డ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి కూడా అదుపు తప్పింది కాబట్టి అమిత్ షా కూడా రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖర్గే గారు కోరుతారు। ఈ సందర్భంలో అయిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజకీయంగా కావచ్చు, నరేంద్ర మోడీ గారు తన ఇమేజ్ ని కాపాడుకునే ప్రయత్నమే తప్ప
ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్టెంట్ గా నిర్ణయాలు తీసుకున్న సందర్భం ఎప్పుడు లేదు. అది రైతు నల్ల చట్టాలైనా, లేకపోతే సాగునీటి చట్టాలైనా, లేకపోతే ఏ అంశమైనా. అదే కాకుండా కరోనా టైంలో హెల్త్ మినిస్టర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణల नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही का मुतालबा करते हुए 26 रोजा भूख हड़ताल पर बैठे माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और मेदांता अस्पताल में मरकजी वुज़रा की मौजूदगी में उन्होंने भूखे और फलों का रस पीकर रोज़ा एहतजाज ख़त्म किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई कि मुस्तक़बिल में इम्तिहानी पर्चों के लीक होने को रोकने के लिए सख्त कानून साजी की जाएगी और इस सिलसिले में और अहम बिल पेपर और काबीना में पेश किया जाएगा। Any anti-social elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh. I'm grateful to them. Thank you. And Gitanji, you have always been very kind and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Hunger tastes better. Want to have some milk also? No, please, one minute. Let me give you one by one. Yeah, I have sent a day by day menu. No, sir. No, just simply, just One spoon. not a spoon also. People don't know whether to. No, sir. I know how it is. Refeeding syndrome happens. No, The refeeding Mom, syndrome. he doesn't have to drink it. Just But why, sir? It is wrong. It's Correct. okay. I don't want to show. just soup is best. Okay, soup is best. Low energy. Can I also? I want to. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. To some people, huh? My doctors here have been very, very kind and very. हैदराबाद के जलपली इलाके के वादी सोलहीन में 2 अफराद पर मुबैना तौर पर बच्चों को रकम का लालच देकर बहलाने की कोशिश का इल्ज़ाम सामने आया। मुकामी अफराद के मुताबिक बच्चों के इनकार पर मुल्ज़िमान ने उन्हें धमकियां दी और बदजुबानी की और शोर सुनकर इलाके के लोगों ने फौरी मदाखलत करते हुए बच्चों को महफूज बनाया। दोनों मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया और बादशाह बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि वाक़े के असल मुहर्रिक की सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं हुई। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बच्चे बाहर गली के बाहर खेल रहे थे। मैं शाहीन नगर वादी सालेहीन में बच्चे गली के बाहर खेल रहे थे अब्दुल्ला किराना स्टोर की गली में। मैं लूंगा घर यहाँ पर ही है। उससे पहले भी यहाँ पर 2 बच्चे गायब हुए वैसा मालूम हुआ। तो ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, 2 ऑटो में दो जने आके बोले करे कि भाई जरा और वहाँ खड़े बोल के बच्चों को आवाज दे के बुलाया करते। बच्चे अंदर रोते हुए अंदर भागे। इन लोगों की आवाज सुन के हम लोग आए तो इन लोगों बोले अंकल हम लोग जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे। बोलो वहाँ क्या करे बोल लोग और पकड़ के हम लोग को ऐसा पैसे बताए तो पकड़ने आए तो हम लोग अंदर भाग गए। हम लोग घर पे घुसने गए तो हमारे अम्मी क्या हुआ बोले तो गालियां दे रहे थे। घर देखने आए बोल रहे थे। घर देखने आए बोल के बच्चों को चाकू से मारा थे बच्चों को।
फूल भी लेके ड्रिंक है आई विटनेस लेडीज को भी गालियां दे रहे जो रहे उनको मारने भी जा रहे थे उल्टा नहीं पहचानते कौन है कि अननोन अल्लाह बोल रहे बारकस के बोल रहे, लेकिन वो खाली भी नहीं बारकस का नाम बदनाम करने का इससे होते ही नहीं वो लोग बारकस के, वो नाम बारकस का ले रहे उन लोग वो अननोन है, इन लोगों का कौन है कि नहीं मालूम उन लोगों को। अभी हम लोग पुलिस वालों को बुला के करके उनको उन लोगों को हैंड ओवर कर दिए। ये लोगों का ऑटो भी रोक लिया हम लोगों की, ऑटो की चाबी हम लोगों ने है, ऑटो यहाँ पर सामने रखा हुआ है। ये पुलिस वाले हम लोग ऑटो लेके पीएस को बोले ये बच्चे, ये बच्चों को लेके जा रहे थे हम लोग। इतने में हम लोग बच्चों की आवाज है तो निकल के बाहर आए, बाहर आके बच्चों से पूछे तो अंकल हमारे को जबरदस्ती ऑटो में बिठा रहे थे, कर रहे थे, पैसे देके बुला रहे, कर रहे थे हमारे। जब हम लोग घर में गए तो हमारे अम्मी के हमारे घर की तरफ भी आके लेडीज की भी गालियां दे रहे थे बोल के बच्चे ऐसा बोले। ये पूरे बस्ती के लोग अब इनके पूरे पकड़े, मैं शहबाज भाई, हारून भाई, अपना पूरे मिलके वो पकड़ के करके पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया हम लोग। हैदराबाद के चादरघाट ऑटो हिरासानी केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कम उम्र मुलजिम को 1 माह की समाजी खिदमत की सजा सुनाई है। बोर्ड के हुक्म के मुताबिक मुलजिम 1 माह तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बोर्ड के दफ्तर में हाजिर होगा। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद अमल में आई, जिस पर चादरघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम का सुराग लगाया और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। हैदराबाद में हाइड्रा ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में हालिया कार्रवाई पर वजाहत जारी करते हुए कहा है कि ये सिर्फ सरकारी जमीन पर तजावुजात के खिलाफ थी और किसी निजी पट्टा अराजी को नहीं छेड़ा गया। इदारे के मुताबिक कार्रवाई GLR नंबर 243 और 255 की सरकारी अराजी पर की गई है, जिसका लोथोकुंटा के सर्वे नंबर 1 और 2 से कोई ताल्लुक नहीं। हाइड्रा का कहना है कि माहौलियाती शिकायत और गैर कानूनी और पहाड़ी कटाई की इतलात के बाद 148 एकड़ सरकारी ज़मीन को महफूज बनाया गया। ताहम चूंकि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की जा सकती। हाइड्रा कमिश्नर जिंदाबाद, हाइड्रा कमिश्नर जिंदाबाद, हाइड्रा कमिश्नर जिंदाबाद, हाइड्रा जिंदाबाद, हाइड्रा जिंदाबाद, हाइड्रा जिंदाबाद, हाइड्रा कमिश्नर जिंदाबाद, जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सवालिया पर्चा लीक होना एक निहायत संगीन मामला है, जिससे लाखों तलबा और उनके वालिदैन को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा है कि किसी भी तालिब इल्म का 1 साल ज़ाय ना हो, इसलिए हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश के साथ 22 लाख उम्मीदवारों के इम्तिहानात मुनक्किद कराए। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक इस मामले में कई सख्त इक़दामात किए जा चुके हैं। मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जबकि फास्ट ट्रैक अदालतों और मज़ीद सख्त क़वानीन के लिए जल्द पार्लियामेंट में बिल भी पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है।
और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में सीजेपी एहतजाज के मामले की समाअत के दौरान सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने पुलिस की कार्रवाई पर सख्त एतराज किया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं किए गए, जबकि आंसू गैस और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल एहतजाज करने वाले तलबा और बच्चों के खिलाफ किया गया। उनका कहना था कि अगर ऐसी कार्रवाइयों को सियासी सरपरस्ती हासिल रही तो इससे पुलिस को कानून से बालातर होकर काम करने का मौका मिल सकता है। ताहम इस मामले पर अदालत में समाअत जारी और पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आना बाकी। Second, you will have enough and sufficient water cannons. In Ramlila, they did not, and the court frowned upon that. You will have enough water cannons as the first step. Here they had one water cannon, which from what I understand was not deployed at all. Tear gas will be the last option and you will not deploy it. They threw it at mothers, wives, small children. There are men standing there with 3-year-old children on their shoulders. Photos and videos will show you that. Tear gas was thrown at them. Canisters were thrown at them. The further instruction is that when tear gas is thrown, it will be thrown away from the crowd and not at them. The number of injuries that happened were completely and solely because of the actions of the Delhi police, the RAF, and those who claimed to be Delhi police and RAF. The videos will also show your lordships, as has already been mentioned, that there are lathis with nails, which are not one instance of any action. And I'm telling you personally, as an officer of this court, I've seen 110 videos. I sat it till the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away. And when he falls down, 4 of them get after him with batons and start beating him with lathis. This kind of excessive force, if the constitutional courts don't step in and stem, it's a license to the police to just get away with absolutely anything because they know they have the sanction of the political masters. It is here, my lords, that we must be accountable. And we need to have them explain their actions, and which is why our prayers include that apart from an SIT, an FIR against these so-called police officers and administrative disciplinary action taken against them, we need to have a judicial inquiry as well. As far as the preservation of records, I think we have enough and more records in any event. There are multiple. Today, every single human being who's walking around with a cell phone is a journalist. There is enough and more video proof. There is also, and this one is unverified, so I'm putting a caveat on it. There is a video of 6:30 on the morning of 20th, where you find a journalist being taken along with one of the volunteers who shows a car which has been parked just that night with its windshield broken, its side smashed, and he says they've brought it and parked it here so that they can blame us later that this happened. There is also another video which shows at 6:30 a.m. in the morning a truck full of bricks and stones, which you can't see from the side, but if you climb up and look in, it's full of bricks and stones which are kept there. Nothing brought by the volunteers and the young people who were there protesting for our rights, the rights of our children and our grandchildren. And it's for them that
हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके के फतेह दरवाजा में कांग्रेस रहनुमाओं ने पल्लीपट्टी राजेश कुमार की क़ियादत में खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जंतर मंतर पर तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एहतजाज के दौरान शिरका ने पुरअमन अंदाज में अपने मुतालबात पेश किए और तलबा के हक में आवाज़ बुलंद की। ताहम इस मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार है। चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान 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 जिंदाबाद। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में 25 तारीख को वज़ीर आला के मुजव्वज़ा दौरे एसपी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ज़िले एसपी विक्रांत पाटिल की हिदायत पर डॉग स्क्वाड की टीमों ने पेश की तलाशी और हिफाजती चैलेंज और जांच का आगाज़ किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दौरे के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम किए गए। कर्नूल ज़िले में रात के औक़ात के दौरान विजिबल पुलिसिंग मुसलसल जारी है। आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से स्टॉप फेस वॉश एंड गो मुहिम के तहत ड्राइवरों में सड़कों की हिफाजत और महफूज ड्राइविंग के बारे में शऊर बेदार किया जा रहा। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं कोई मुश्तबा सरगर्मी या वाक़या नज़र आए तो फौरी तौर पर डायल 112 पर इतला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। अमरावती में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासती सेक्रेटेरिएट से वर्चुअल तौर पर मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बताया गया कि महकमे रेवेन्यू ने ज़मीन के रिकॉर्ड के मुस्तक़िल, महफूज और शफाफ बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम तैयार किया। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से अराजी के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के इम्कानात कम होंगे और आवाम को महफूज व काबिल एतमाद लैंड रिकॉर्ड की सहूलत मैसर आएगी। आंध्र प्रदेश के पालाकुलो के इलाके येल्लमचल्ली में क्रोशिया लेस फनकारों के लिए मुफ्त आंखों के मुआयने का तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। ये कैंप नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की हिदायत के मुताबिक दस्तकारों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी मुहिम का हिस्सा है। कैंप में 217 फनकारों की आंखों का मुआयना किया गया, जिनमें 5 अफराद में मोतिया की शिकायत सामने आई, जबकि 187 अफराद को चश्मों की ज़रूरत करार दी गई। हुकाम के मुताबिक इन तमाम मुस्तहिक़ फनकारों को मुफ्त चश्मे फराहम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती पुलिस की स्ट्रैटेजिक रिट्रीट में IPS अफसरान से खिताब करते हुए कहा है कि बदलती हुई जुराइम से निमटने के लिए पुलिस को टेक्नोलॉजी से मज़ीद मजबूत बनाना होगा। उन्होंने साइबर क्राइम, ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत, ड्रोन खतरात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस पर मबनी पुलिसिंग पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा है कि AP पुलिस विजन 2047 के तहत एक ऐसी पुलिस फोर्स तैयार की जाए जो टेक्नोलॉजी से लैस, अवाम दोस्त, मुस्तक़बिल के लिए तैयार और जुराइम पेशा अनासर से हमेशा एक कदम आगे हो। उन्होंने इस 3 रोज़ा रिट्रीट के इनेकाद पर महकमे दाखिला और पुलिस क़यादत को मुबारकबाद दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर नारा लोकेश ने बताया कि वो जुमे के रोज़ रामपा चौदावरम मंडल के जगरमपल्ली मुकाम पर मुनक़दा मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादशाह नारा लोकेश ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी वसूल की। उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर नारा लोकेश ने बताया कि नौजवानों को 20 लाख रोजगार के मौके फराहम करने के हदफ पर वजारती कमेटी का इजलास
इंदावली में उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ। उनके मुताबिक रियासत में मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद 1037 ज़राअती मनसूबे सामने आए हैं, जिनके ज़रिए तकरीबन 24,66,000 नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलने की तवक्को है। इजलास में हुकाम को हिदायत दी गई है कि हर मनसूबे की मुसलसल निगरानी करते हुए उन्हें जल्द अज जल्द अमली शक्ल दी जाए। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, महफूज रहिए, सेहतमंद रहिए और सच के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।